Hello everyone. My name is Dinesh Ahirrao and I'm working as an assistant professor of political science in University of Delhi from last 5 years. And today in this lecture I'm going to discuss about two things. First is about how to prepare for current affairs and second is about answer writing, how you should write the answers for civil services examination, right? So the first is how to prepare for current affairs. One thing students keep on asking continuously is this thing, like what are the strategy? What is the strategy to prepare for current affairs to enhance our chances of getting selected for civil services examination, right? So before I proceed, I just want to caution you one thing. There is no one perfect strategy to clear this examination, right? I mean, you cannot say that this is the perfect strategy. If you follow this and you will clear the civil services examination, it is not like that. Why I'm saying this? Because every individual is unique, right? And every individual has their own strengths, weaknesses, skill set is very different, right? So you cannot have one size fits all approach for anything, right? So same thing goes for this particular issue as well. So whatever suggestions I'm going to give you, take those suggestions based on your strengths and weaknesses. Whatever suits you, take those things only, right? Because as I said, there cannot be any one size fits all approach, right? And second thing, students commit mistake that if a topper has followed this particular strategy, then I should also follow the same strategy. It is not like that. As I've already told you that every individual is unique. What can work for one person might or might not work for the other, right? So prepare your own strategy. Now, having said that, let's proceed towards the topic of today's discussion about current affairs. Now, the first issue is about why. Why current affairs are important? What is the significance of current affairs for civil services examination, right? Now, if you look at the structure of civil services examination, we have preliminary test, then we have mains, and then we have personality test. So if you look at the previous year question papers, then the current affairs, they occupy significant importance in preliminary test, in mains, as well as in personality test. So at all three stages of civil services examination, current affairs are very, very important. Like it is very difficult. Let me say this categorically. It is very difficult to clear civil services examination without preparing for current affairs. Why? As I've already told you. Why? Because at all these stages, current affairs are not only important for preliminary test but also for mains. Even in personality test, the interviewers, they ask you questions regarding the current happenings, right? So that's why it is very, very important to prepare for current affairs. Now, having understood, and one thing is that from last 3 to 4 years, the significance and importance of current affairs is increasing every year. I mean, it is increasing every year. So the same trend is most probably the same trend is going to be followed by UPSC, right? Now, having understood the importance of preparing for current affairs, the next obvious question is how to prepare, right? How to prepare for current affairs. चलो, पता चल गया कि current affairs important है, लेकिन अब how to prepare? What are the ways through which you can prepare for current affairs, right? So the first obvious question is, what are the sources? What are the sources? And where to start? Before this, where to start? Now, first thing should come first, and first thing you should do before reading anything, be it newspaper, be it magazines, be it monthly compilation, so on and so forth, before you do anything, you should do very important thing, and that is go through the syllabus. And second thing, go through the previous year question papers. These two things are very, very important. More often than not, I have seen that students, without looking into the syllabus, without going into the previous year question papers, they straight away start reading the Hindu or Indian Express or magazines. Do not commit this mistake. Be it any examination, first thing you should do is to understand or to make yourself aware about the syllabus. Very important.
each and every bit of the syllabus should be at your fingertips. So first thing you do, take the printout of the syllabus, paste it on your drawing room or wherever you study, right? And keep on looking at syllabus every day in order to ensure that whether you are on correct direction, whether you are going on in a correct direction or not, right? Syllabus. Second is go through the previous year question papers. Now, why it is important to go through the previous year question papers is very simple. If you go to the previous year question paper, then you will understand the importance of current affairs. And second, you will understand what the issues and what are the topics on which the examiner put more emphasis on. Like if you look at the previous year question papers, there are certain issues on which UPSC highlights. For example, anti-defection law, interstate river water disputes, so on and so forth, role of speaker, role of governor, federalism, so on and so forth. So there are certain issues on which UPSC keeps emphasis again and again. So if you go through the previous year question papers, then only you will understand what are the issues of the current affairs you are supposed to emphasize more upon, right? Fine. Then next question is about what are the sources. Now this is the most important thing. यहाँ पे सब लोग को प्रॉब्लम आता है कि what are the sources, कहां से पढ़ना है, ठीक है? Sources. Now broadly speaking, there are 4 sources to prepare for current affairs, right? सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर्स. Second is monthly compilations. Monthly compilations prepared by various coaching institutions. We at CUBE will also be providing you monthly compilations, which will be very exhaustive. Then third is monthly magazine. Yojana, Kurukshetra, Frontline, EPW, Seminar, so on and so forth, World Focus. And fourth is internet sources. Rajya Sabha TV, Lok Sabha TV, PIB website, so on and so forth. So broadly speaking, these are the 4 sources to prepare for civil services examination, and everybody knows this, right? I mean, I'm not telling you something new. But before I proceed, there is one golden rule to prepare for current affairs, and not only for current affairs but for all the issues, and that is limit your sources. This is very, very important. I have observed that students मार्केट में जाते हैं, जो भी उनको करंट अफेयर्स में मटेरियल मिलता है वो सारी चीजें वो खरीद लेते हैं, बिकॉज दे फील दैट दे शुड नॉट मिस समथिंग. Now this is where the most of the candidates or civil servant aspirants they commit the mistake, right? Understand this. जरूरी नहीं कि आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. It is not like that. So it is very important to limit your sources. Why? Because आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है. There is optional subject, we have general studies 4 papers, we have essay paper, so many things we have to prepare. So you cannot go on reading one thing again and again, right? So हमको PhD नहीं करनी है. There is difference between academicians and civil servants. Understand this requirement, right? So first thing, limit your sources. जो भी चीजें आप rather than reading from multiple sources, it is very important to read from one particular source again and again. Follow that religiously, consistently. That's it. That will be sufficient. Because UPSC ऐसा नहीं कि एक ही सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, या ऐसा नहीं कि अगर आपने EPW नहीं पढ़ा तो आप कुछ ज्यादा कुछ मिस कर रहे हो. ऐसा नहीं है. Because the nature of this examination is general in nature. If you look at the general studies papers, right? Fine. So limit your sources. And then second, yes, we have understood the importance of current affairs. Current affairs बहुत important है, and it is very difficult to clear civil services without preparing for current affairs. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि you will spend disproportionate amount of time on preparing for current affairs, right? So do not overplay the importance of current affairs. Don't overdo it, है ना? What I'm trying to tell you is that I have seen students preparing for 7 to 8 hours only for current affairs, spending 7 to 8 hours on current affairs. No, don't do it. There should be some cost benefit analysis.
आई होप यू आर एबल टू सी दिस. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है कि इफ आई एम स्पेंडिंग 7 to 8 hours on current affairs, what is the what are the benefits which I am getting, right? So do not give disproportionate, do not devote disproportionate amount of time on current affairs. Yes, current affairs important है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन भर आप current affairs ही पढ़ते रहोगे. No, right? So these are the two things which are very important, right? Now coming back to the sources. So the first and the most important source is newspaper. Now herein so many candidates have doubt. ठीक है, कौन कौन से डाउट्स है? नंबर 1, is it necessary, is it essential to read newspaper when we have monthly compilations, when we have monthly current affairs magazines, so on and so forth? अगर हमारे पास monthly compilations आ रहे हैं, उसमें सारी current affairs related information हमारे पास है, magazines है, तो why should we read newspaper? This is the first question, right? And second question which comes into the minds of the students is which newspaper to read and how many newspapers to read. है ना, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और दूसरा है कितने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, राइट? सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. So first thing, that can we substitute newspapers with monthly compilations? And the answer is categorically no, not at all. ये गलती कभी मत करना कि न्यूज़पेपर छोड़ के आप मंथली कंपाइलेशंस के ऊपर ही आप डिपेंडेंट रह रहे हो. Don't commit these mistakes. You know, newspapers are very, very important. Now, why? You will ask, sir, क्यों? आप justify करो. आपने ये बोला कि newspaper important है, तो आप justify करो. Now, I will do that. You know, newspapers are important not only for the information, right? They are important not only for information, but also to develop the understanding of any particular issue. You know, by reading articles of various journalists or various professors, you will develop that skill of understanding a particular issue. You will develop various skills such as critical thinking, how to look at any particular issue from a critical lens. You will develop logical reasoning. Now these are the things which you cannot develop by just reading monthly compilations. अगर आप कोई एडिटोरियल में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उससे आपको समझ, you will slowly and gradually you will learn how to develop your arguments, how to look at any particular issue from critical lens, how to question, right? What are the weaknesses? So it is very important. No, these are the skills which cannot be developed only by reading magazines or monthly compilations, right? So newspapers are important not only as a source of information, but they are also important to develop the level of understanding, to develop critical thinking, analytical and logical reasoning, so on and so forth. इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है. Right? Now, second thing, if you read newspaper, you can also develop your writing skills. Right? Writing skills बहुत important है. 1750 marks are for men's. So by reading newspaper, by reading articles, editorials, so on and so forth, you will also learn how to write. What should be, how should we start any writing on any particular issue? If, for example, if there is an issue about anti-defection law, or say farmer suicide, so where should we start? How to conclude? What are the things we should include in that article? Right? So these are the things you can develop gradually only by reading newspapers, right? So I repeat, there cannot be any substitute for newspapers. Okay? Don't fall into the trap of your fellow aspirants or friends, so on and so forth, कि यार ज़रूरी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, उससे अच्छा है कि एक ही बार मंथली कंपाइलेशंस पढ़ लो and it is sufficient. No, please understand this. ठीक है? Now okay, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, fine. ठीक है? It cannot substitute monthly compilations. So which newspaper to read? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? Again, this is perennial question which students keep on asking. Which newspaper to read? Now broadly, every civil servant aspirant know about two newspapers. First is The Hindu and second is the Indian Express. Now these are the two newspapers, ठीक है, which are very important. ठीक है,
अब स्टूडेंट्स को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि सर क्या पढ़े, इन दोनों में से क्या पढ़े या दोनों पढ़े, ठीक है। देयर इज वन मोर न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, GS3 के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना चाहिए। बहुत सारे आपको बहुत सारे लोग सजेशंस देंगे, ठीक है। नाउ आई बिलीव दैट इट इज सफिशिएंट टू रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। इट इज सफिशिएंट टू रीड ओनली न्यूज़पेपर। आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज मोर देन इनफ। And again, understand, I've told you that do not devote disproportionate time to current affairs, right? So ये मत समझो कि यार ये द हिंदू पढ़ेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस का कोई अच्छा आर्टिकल हम मिस कर देंगे। See, somewhere down the line you have to control yourself, है ना, कि यार प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में कोई आर्टिकल लिखा है, चलो उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने लगे तो और 4-5 आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसमें 1 घंटा आपका चला गया, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है जो इंडियन एक्सप्रेस में आता है हिंदू में नहीं आता है। टेक द केस ऑफ फार्म बिल्स, राइट? ये कंटिन्यूअसली द इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, द हिंदू में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, और मोरलेस आर्ग्यूमेंट्स मोरलेस सेम ही होते हैं, ठीक है। सो इट इज सफिशिएंट टू रीड वन न्यूज़पेपर। डोंट रीड टू न्यूज़पेपर। व्हाई? देन यू नो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर शुड बी सम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बिकॉज आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बाकी चीजें भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो वन न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट। नाउ सेकंड, विच न्यूज़पेपर? नाउ इट इज अ सब्जेक्टिव चॉइस ऑफ एवरी कैंडिडेट, ठीक है। ये आपके, आई विल लीव इट टू यू to decide which newspaper you should read, but I will tell you my own preference, right? See, it is a subjective choice कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। it depends on, it differs from person to person। आपको कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो बोलेंगे इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे द हिंदू अच्छा है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज माई व्यूज ऑन यू, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माई ओपिनियन। As far as my experience is concerned, you know, I am following the Hindu from last 12 to 13 years. I'm continuously following the Hindu, and I believe it is very good newspaper. By saying that, I am not saying that Indian Express is bad. I'm not. Both are very equally good. But if you ask me, then I will prefer the Hindu, right? So, लेकिन ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप दोनों न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, जो आपको सही लगे आप उसको फॉलो करो, लेकिन एक को ही फॉलो करो, ठीक है। थोड़ा द हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, दो क्वेश्चन में आपको करना चाहता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एज कंपेयर टू इंडियन एक्सप्रेस, द लैंग्वेज ऑफ द हिंदू इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो अगर स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो डोंट वरी, चिंता मत करो। ये हर एक के साथ होता है, हम लोग के साथ भी हुआ है, हर एक के साथ होता है, बिकॉज थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है। और दूसरी चीज मैं कॉशन करना चाहता हूँ, व्हेन यू रीड द हिंदू इज लिटिल आई मीन इट इज मोर क्रिटिकल, ठीक है। थोड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। सो व्हेन यू राइट आंसर्स, डू नॉट राइट टू क्रिटिकल आंसर्स, ठीक है। राइट बैलेंस आंसर, ठीक है। तो थोड़ा इसमें कॉशन करो, बिकॉज एवरी न्यूज़पेपर हैव सम आइडियोलॉजी प्रोपगेट, ठीक है। तो द हिंदू में भी थोड़ा सा लेफ्टिस्ट लीनिंग है, ठीक है। बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बायस्ड, इट ट्राइज टू बैलेंस इट, बट ठीक है, बट समटाइम्स इट गेट्स टू मच, ठीक है। सो थोड़ा वो पढ़ते समय कॉशन रहो, बिकॉज यू आर सी, यू आर नॉट जर्नलिस्ट, you are not academician, you want to prepare for civil services, you want to be a part of government, ठीक है। and it is the job of media, it is the job of academicians to hold government accountable and to expose its weaknesses, right? So as a civil servant, you should aware about those weaknesses, but you should not, you cannot go on criticizing government for each and everything it does. No, why? Because you want to become a part of government, so you should learn how to defend government, right? But defending government doesn't mean कि जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, no, because if you look at the questions of civil service examination, it do encourage critical thinking, right? So fine, द हिंदू एक न्यूज़पेपर पढ़ो, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम वी शुड डिवोट फॉर न्यूज़पेपर्स। कितने टाइम लगने चाहिए, न्यूज़पेपर कितने टाइम में खत्म करना चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन one thing I'm emphasizing again and again, that do not overplay the importance of current affairs. Do not underestimate current affairs and do not overplay its importance. Balance it. ठीक है। So अगर आप if you are new, I mean if you are fresh aspirants, I mean you are preparing for the first time, then आपको starting में you can give 2 to 2 or 2.5 hours to read newspapers. शुरुआत में आपको थोड़ा समय लगेगा. If you are taking 2.5 hours, then it's okay. It's absolutely okay because you're not aware about various issues. Now, if you read newspaper for 2 or 3 months, then gradually ये time कम
हो जाता है और कम होना चाहिए। ठीक है, अगर कम नहीं हो रहा है तो अगेन यू विल नॉट बी एबल टू कवर द अदर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, राइट। ठीक है, सो मोर और लेस आई बिलीव दैट यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 1 hour, you should not spend more than 1 hour on reading newspapers। ठीक है, न्यूज़पेपर को फॉलो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर 4-5 घंटे से न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो। डोंट डू दिस मिस्टेक। ठीक है, 1 घंटे में आपको टाइम लिमिट है, 1 घंटे में आपको वो न्यूज़पेपर अप्रोक्सीमेटली, आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट इधर 15 मिनट उधर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में आपको न्यूज़पेपर खत्म करना है। ठीक है, हाँ कभी कभी हो सकता है कि इन एडिटोरियल पेज 4 आर्टिकल्स आए हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन दी सिलेबस। ठीक है, तो हो सकता है उस दिन आपको 1 घंटे की जगह पे 1.5 घंटा लग सके। ठीक है, सो मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा आपने न्यूज़पेपर पे देना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच कैंडिडेट्स आस्क कि सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हाट आर द इश्यूज वी शुड फोकस ऑन, कि कौन कौन से चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है, व्हाट टू रीड, हाउ नॉट टू रीड, हाउ टू डिसाइड, राइट। नाउ इसका आंसर आपको सिलेबस से मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट यू शुड नो द सिलेबस। एवरी बिट ऑफ द सिलेबस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। याद कर लो सिलेबस को। तो जैसे ही आप सिलेबस को याद करते हो, अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आया है तो आपके मन में आना चाहिए कि हाँ ये आर्टिकल इस पर्टिकुलर सिलेबस से है, या फिर ये आर्टिकल कंसीडरिंग द सिलेबस ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। भले आपको मजा आ रहा हो उस आर्टिकल पढ़ने में, लेकिन सिलेबस में नहीं है, सो डोंट रीड दैट। ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट आर द इश्यूज यू शुड फोकस व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई विल डिवाइड दिस इनटू फोर or five issues you should focus while preparing for civil services. ठीक है, first is about, if you read any newspaper, focus on constitutional issues. Constitutional issues, then functioning of the parliament, legislature, so on and so forth. Now I will give you one example of it, right? So on 29th of January, day before yesterday, President of India Ramnath Kovind, he addressed both the houses of parliament, right? Now this was the news, right? Now while you read this news, you should know about the constitutional issues involved in that. Now why President addresses both the houses of parliament, where it is written, कहां पे लिखा है, क्यों एड्रेस किया है? ऐसा तो नहीं कि उनके मन में आ गया तो उन्होंने एड्रेस किया, नो। सो इफ यू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, न्यूज़पेपर में आते रहता है। ठीक है, दैट प्रेसिडेंशियल स्पेशल एड्रेस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Under Article 87 of the Constitution says that at the commencement of the first session after every general election and at the commencement of the first session of each year, President shall address both the houses of parliament together, assembled together. Now this is requirement which is written in Article 87, which talks about special address by the President, right? So now this is the constitutional issue on which you should focus. कि आर्टिकल 87 क्या है? आर्टिकल 86 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 86 इज अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एड्रेस द हाउसेस एंड सेंड मैसेजेस। नाउ आर्टिकल 86 एंड आर्टिकल 87 डिफरेंट है। ठीक है, आर्टिकल 86 डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेज टू एनी ऑफ द हाउसेस, प्रेसिडेंट मे एड्रेस एनी ऑफ द हाउसेस। ठीक है, बट आर्टिकल 87 ये कंपल्शन है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एड्रेस। ठीक है, तो ये थोड़े छोटे छोटे इश्यूज है जो आपको जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ते समय फोकस करने हैं। ठीक है, कोई आर्टिकल आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसको देखो, उसको हाईलाइट करो, लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, देन प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, जैसे ऑन 1st of February फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल बी टेबलिंग द बजट on the floor of both the houses. Now this is the news. ठीक है, now you should focus on कि क्या बजट, now budget making is there in the syllabus GS paper 2, how budget is made, like what is the procedure, right? तो उसके ऊपर आप फोकस करो। ठीक है, कि 1st February जो है, क्यों 1st February को ही बजट प्रेजेंट किया जाता है? बिकॉज इट इज कन्वेंशन।
ठीक है, इट इज नो वे रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कन्वेंशन है, बजट, द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंस्टेड ऑफ बजट द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112. सो ये सारे इश्यूज है रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इसके ऊपर आपको फोकस करना है. अनदर एग्जांपल आई लाइक टू गिव इज अबाउट सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर, राइट? बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सस्पेंड द क्वेश्चन आवर. ठीक है, तो उसमें आपने फोकस करना है कि व्हाट इज क्वेश्चन आवर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर कब होता है, लोकसभा में कौन सा टाइम है, राज्यसभा में क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो ये चीजों पे आप फोकस करो व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. नाउ इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज को इग्नोर करो, है ना, पॉलिटिकल इश्यूज को इग्नोर करो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ आई डोंट अग्री विद दिस. ठीक है, व्हाई? सी, पॉलिटिकल न्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स. फर्स्ट इज Rahul Gandhi gives jhappi to Prime Minister Modi in the parliament, or Rahul Gandhi attacks Prime Minister, says चौकीदार ही चोर है. Now this is purely political news. This is not important for you. ठीक है, ममता बनर्जी क्या कह रही है, ठीक है, एक पर्सनल क्या डिस्कशन, पर्सनल क्या अटैक कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? इश्यूज. नाउ इफ द ऑपोजिशन पार्टी इज क्रिटिसाइज, ऑपोजिशन पार्टी अटैक्स गवर्नमेंट ओवर फार्मर्स लॉस, राइट? नाउ दिस इज द न्यूज, राइट? और उसमें फिर ऑपोजिशन मेंबर्स क्रिएट रकस इन द पार्लियामेंट ओवर फार्मर. नाउ रकस क्रिएट कर रहा है, किसने, क्या हुआ वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्यों, व्हाट आर देयर आर्ग्यूमेंट्स? ठीक है, फॉर एग्जांपल जब क्वेश्चन आवर सस्पेंड हुआ तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया, कॉलिंग इट एज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ दिस इज एन इशू. नाउ दिस इज वेरी, इट इज एन पॉलिटिकल इशू. ठीक है, तो पॉलिटिकल न्यूज में भी बहुत ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्योरली पॉलिटिकल न्यूज एंड दोज पॉलिटिकल न्यूज वेयर यू कैन गेट सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल न्यूज है तो उसको आपको मतलब इग्नोर ही करना है, आंखें बंद करके उसको कैंसिल कर देना है, ऐसा नहीं है. थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ो कि क्या है एग्जैक्टली. अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ दो, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. बिकॉज वेन एवर ऑपोजिशन क्रिटिसाइजेस, ऑपोजिशन इज वॉइसिंग इट्स ओपिनियन, और वो क्रिटिसिज्म भी कहीं ना कहीं वैलिड भी होता है कभी कभी. तो वो क्रिटिसिज्म से आप पॉइंट ले सकते हो कि हाँ, व्हाई ऑपोजिशन इज क्रिटिसाइजिंग, व्हाट आर द पॉइंट्स दे आर मेकिंग, राइट? सो ये पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो. ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये आपने बहुत बार आपने सुना होगा, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन न्यूज, फोकस ऑन इश्यूज, राइट? यू शुड फोकस ऑन इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल ये न्यूज है कि farmers are protesting at Singhu border over farmers laws. ठीक है, या farmers create ruckus और farmers they are doing violence and so forth. ये न्यूज हो गई, लेकिन इशू क्या है? criticism of farmers laws, right? Now what are those laws, what are the provisions of those laws, and why the opposition is criticizing, why farmers are criticizing, what are their demands, and what can be the possible solution. Now these are the issues which you should focus on. न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इश्यूज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फाइन. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग which you should focus while reading newspaper is various judgments of Supreme Court and High Court, right? Judgments of, sorry for my handwriting, I am writing it fast. Judgment of SC and Supreme Court and High Court. Judgment of higher judiciary. Now they are very important because उससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत काम में आएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ban on women of the age of 10 and 50 to enter into Sabrimala temple amounts to untouchability, and Supreme Court argued that the patriarchy of the religion cannot be allowed to trample the women's right to worship.
or it is against the article 14, 15, article 21, 19 of the constitutions, right? So बहुत सारे ऐसे आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ऐसे में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? सो फॉलो द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिलीजियसली एंड ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ इट, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट. Third important thing which you should focus while reading newspaper is reports. Reports published by government, है ना? गवर्नमेंट अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में आता है. फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने टेबल कर दिया, तो गो थ्रू दैट पर्टिकुलर न्यूज़. दैट न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट. देर आर ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूशंस विच ऑल्सो प्रिपेयर रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, few months back, it published a report that 43%, based on research studies, report या research studies, 43% of the existing members of Lok Sabha have one or more criminal cases pending against them, right? So ये important information है, ठीक है? So reports, research studies, ठीक है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कोई रिपोर्ट आया है, सेंसस का कोई रिपोर्ट आया है, वेरियस कमिटीज गवर्नमेंट अलग अलग कमिटीज सेट करती है, उस कमिटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस है, ठीक है? ये रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना है आपको. अलॉन्ग विद दैट वेरियस इंटरनेशनल bodies or international institutions also publish their reports. For example, International Monetary Fund, World Bank, so on and so forth, right? So ये reports में क्या लिखे, जैसे UNDP, Human Development Index report, ठीक है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो ये बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसमें से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनरिच योर आंसर, ठीक है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. देन फोर्थ इज सोशल इश्यूज. GS1 के लिए सोशल इश्यूज, untouchability, communalism, secularism, ठीक है? casteism. There are various social issues based on caste, religion, gender, disability, so on and so forth, right? So you should focus on social issues as well, है ना? For example, there was a few months back there was news in the Hindu that how the women sarpanch of Gram Panchayat was made to sit on the ground. Now this is a social issue which reflects that despite of having 73rd Constitutional Amendment Act and despite of giving a reservation to women, the women are being discriminated against by the upper caste members of the panchayati institutions, right? So this is a social issue which is very important, right? So ये ऐसे social issues पे आपको focus करना है, ठीक है? Then next important thing is about international relations. राइट? इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना? हर एक न्यूज़पेपर में, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आप देखोगे तो एक पेज या दो पेज जो है IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, जो GS पेपर 2 के लिए काम में आएगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में भी आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस. इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस वी शुड यूज ग्लोबल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल issues, because politics has no longer remained as an arena which happens between nation states. There are other non-state actors which are also become very important, international organizations, MNCs, terrorist organizations, so on and so forth. So instead of using this international relations or international politics, we should go for global politics, which is more inclusive term. Anyways, तो global issues के ऊपर आपको focus करना है, ठीक है? India-Israel relations, India's relationship with neighboring countries, ठीक है? So on and so forth, ठीक है? तो international issues के लिए के ऊपर आपको focus करना है because it is important for GS paper 2, ठीक है? Then next is economic issues. बिजनेस इकोनॉमिक इश्यूज. अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे काम की नहीं है. फॉर एग्जांपल, TCS Q3 प्रॉफिट इज डिक्लाइन बाय दिस परसेंटेज. नाउ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, right? Cognizant lay off the workers. Now this is important because this is related to somewhere down the line it is related to unemployment, ठीक है? तो बहुत सारे इकोनॉमिक बिजनेस पेज में, चाहे द हिंदू हो या द इंडियन एक्सप्रेस हो, उसमें बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे काम के नहीं होती है. किसी कंपनी में क्या हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हमको कौन कौन से इश्यूज पे काम करना है बेस्ड ऑन द सिलेबस, ठीक है? फॉर एग्जांपल, RBI का कोई रिपोर्ट पब्लिश किया है, ठीक है? या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस इश्यूज के ऊपर ही आप फोकस करो, ठीक है, बाकी इश्यूज आपके काम के नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा? इफ यू कीप ऑन looking at the syllabus, then you will know how to read and what to read and what not to read. ठीक है, starting में you might get a difficulty about differentiating between what is important, what is not important, but over a period of time, after 2-3 months, not years, after 2-3 months, you yourself will be able to differentiate between what to read and what not to read. ठीक है, but keep one thing in mind, that you should not you should not devote so much of time on reading newspapers. ठीक है, 1 घंटे में आप कोशिश करो, 1 या मैक्सिमम डेढ़ घंटे या सवा घंटे में उसको खत्म करने की कोशिश करो। ऑलराइट, डन, फाइन। सो नेक्स्ट, सोर्स। नाउ दिस इज अबाउट न्यूज़पेपर, राइट? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स as far as current affairs is concerned is monthly compilations. Monthly compilations prepared by coaching institutes, right? Now आप लोग कहोगे कि सर न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो ये मंथली कंपाइलेशंस पढ़ने की क्या जरूरत है? आई विल से यस, you should read monthly compilations. Why? Because it will help you to revise. Number 1, रिविजन के लिए काम में आएगा, ठीक है। जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है, फाइन, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द इश्यूज, लेकिन जब आप मंथली कंपाइलेशंस भी पढ़ोगे तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, ऐसा हो सकता है ना कि किसी दिन आप बीमार पड़ गए और आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, या न्यूज़पेपर आया नहीं, मिस हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर आप अगर न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो भी कर रहे हो तो इनएडवर्टेंटली, ठीक है, अनकॉन्शियसली आपने एक आर्टिकल पढ़ना भूल गए, या वो न्यूज आपने मिस कर दी। हो सकता है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर नॉट इनफॉलिबल, वी कैन मेक मिस्टेक्स, राइट? सो बाय रीडिंग मंथली कंपाइलेशंस यू आर फिलिंग दैट गैप, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर यू विल गेट टू नो कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर इशू कब आया था, ये तो मैंने मिस कर दिया। सो दैट यू विल बी एबल टू फिल दैट गैप बिटवीन योर ओन नोट्स एंड between what is the content, whatever is the content in the monthly compilations. You can follow monthly compilations of any institutes, and we will be focused, we will also be giving you monthly compilations which will be very exhaustive. So if you follow our monthly compilation, it will be good. Fine. Next is before I proceed, one thing I want to discuss briefly is about note making. How to make notes? Should we make notes? Should notes be handwritten? Should we make handwritten notes? या notes को online बनाने हैं, PPTs बनाने हैं, so on and so forth. Now again, there is no hard and fast rule, and I have already told you that there is no one size fits all approach. ठीक है, जो भी मैं चीजें कह रहा हूँ, it might work for some people, it might not work for some people. Whatever I am trying to tell you, it is based on my experience and based on the mistakes which are generally committed by the aspirants, ठीक है। So note making, so if you ask me, ठीक है, I'll always tell you to make your notes online or through digital sources. Huge digital sources, there are various sources. आपने सुना होगा, बहुत सारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने उन्होंने भी बताया होगा आपको कि एवरनोट करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है। जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको थोड़ा मुश्किल जाता है शुरुआत में कि यार ये एप्लीकेशन कैसा है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन पीपीटीज, एमएस वर्ड में नोट्स बना सकते हो, पीपीटीज बना सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाई यू शुड फोकस ऑन मेकिंग नोट्स ऑनलाइन और थ्रू डिजिटल सोर्सेस? क्यों? फॉर वेरी सिंपल रीजन, दे आर वेरी इजी टू अपडेट, नंबर 1। और हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, आई मीन गॉड फॉरबिड, कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यूपीएससी क्लियर ना हो, ठीक है। तो जब हैंड रिटन नोट्स आप बनाओगे ना, सो इट गोज ऑन कंपाइलिंग, ये जो है इट गोज ऑन एडिंग, ठीक है, और इतना सारा चीज हो जाता है। बीच में आप सपोज शिफ्ट कर रहे हो, हाँ, आप दिल्ली छोड़ के अपने स्टेट में जा रहे हो, यू आर चेंजिंग योर रूम, सो तो इसमें ये जो हैंड रिटन नोट्स है, दीमक लग गई नोट्स को। आई हैव सीन द नोट्स ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द दीमक, है ना, दिल्ली में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप देखो, फॉर एग्जांपल कोविड-19 में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अचानक से अपने घर चले गए, और बहुत सारे उनके जो नोट्स थे वो यहीं पे रह गए, ठीक है। हाँ, तो उनको फिर they didn't have access to those notes,
ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैपन सो सडनली। तो उस टाइम पे क्या, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन या डिजिटल सोर्सेस में अगर आप नोट्स बनाओगे, दे आर वेरी इजी टू एक्सेस, यू कैन इजीली एक्सेस, है ना। आप डालो यहाँ पे फार्मर्स सुसाइड, टॉपिक डालो, उसमें आपको आ जाएगा, आपको जो भी पढ़ना है आपको अपडेट करना है, इफ यू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मर सुसाइड, ठीक है। इस टॉपिक वाइज पीपीटीज बनाओ या टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, एवर नोट के थ्रू आपको आसान जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बनाना है तो पीपीटीज में भी बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एवर नोट बताया तो एवर नोट से ही बनाने हैं नोट्स, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए काम में, कुछ लोगों के लिए वो आसान तरीका है, कुछ लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो कुछ लोगों को लिखना पसंद है। नाउ इट्स अप टू यू, आई विल लीव इट अप टू यू, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स of making notes online or using digital sources. I have already told you they are easy to update. अगर आपको कोई पर्टिकुलर इशू आपको ऐड करना है इंट्रोडक्शन में या पर्टिकुलर डेटा करना है, तो आप हैंड रिटन नोट्स करोगे तो फिर आपको फिर से एक पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप उसको स्टेपल करोगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर वो पेज मिस हो गया, हाँ, आपके एग्जाम के टाइम पे आप वो नोट्स ले गए और वो नोट वहीं पे भूल गए, आप कोचिंग क्लासरूम में भूल गए और बाद में आपको वो नोट मिली ही नहीं, आपकी नोटबुक मिली ही नहीं। तो ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप बोलोगे कि सर लैपटॉप भी तो क्रैश हो सकता है। नाउ आई डोंट हैव सॉल्यूशन टू दैट, ठीक है। यू कैन, I mean, I'm just trying to tell you the benefits of making notes online. दूसरा है they're accessible. You can मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई ऐड करना है, अपना मोबाइल खोल लिया, अपना लैपटॉप ओपन कर लिया, उसमें आपने उसको अपडेट कर लिया, ठीक है। तब घर पे बैठे हो, आपको कोई चीज सुनाई दी, हाँ देखो यूपीएससी में ना यू शुड ऑलवेज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट पढ़ाई मतलब ये नहीं है कि यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड रीडिंग समथिंग एंड दैट इज द ओनली स्टडी, नो, ऐसा नहीं है। Even while traveling you will get to know so many things which are important, right? So you should keep your eyes and ears open always if you want to clear this examination, ठीक है, and if you want to enjoy the process, right? ठीक है। So now next, so monthly compilation, you should read, you should follow monthly compilation, you should complement the newspapers with monthly compilations, but you cannot replace newspapers with monthly compilations. All right, done, fine. Next important question is magazines. Which magazines to you to read and how many magazines we should follow? Because market में बहुत सारे magazines available है. Now I have seen candidates buying each and every magazine on current affairs. Now do not commit this mistake. थोड़ा अपनी इच्छाओं को और महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करो. Don't overplay the importance of करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स में पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक जनरल अवेयरनेस आपको रखना है उनके बारे में और आपके पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट अबाउट नोट मेकिंग इज दैट जब भी आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो डोंट राइट ईच एंड एवरीथिंग यू रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू, नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट मेक शॉर्ट नोट्स ओनली, शॉर्ट नोट्स। एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर सिर्फ 250 से 300 वर्ड्स ही नोट्स बनाओ। अगर आप एक इशू पे 10 पेजेस नोट्स बना रहे हो, 15 पेजेस, 20 पेजेस नोट्स बना रहे हो, तो इट विल बी ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिवाइज दैट दोज करंट अफेयर्स। कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। सो इन ऑर्डर टू मेक द रिविजन इजियर, ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स. Do not make notes on any issue more than 250 or 300 words, ठीक है। अब एक ही इशू के मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं, है ना। अब फार्मर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर मल्टीपल इश्यूज है, फार्मर सुसाइड्स है, ठीक है, देन लैंड रिफॉर्म्स है, ठीक है। तो वो आप उस सब टॉपिक के ऊपर 250 से 300 वर्ड्स से ज्यादा आप नोट्स मत बनाइए। दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Because I have seen many candidates, they are crying over the fact that I could not revise current affairs. मैंने बहुत religiously follow किया, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन I could not revise, I could not recollect it at the time of examination. Now you tell me, you spend so much of time on writing those notes, on reading those notes, ठीक है, and you are not able to recollect. So what is the importance? क्या important है फिर आप लिख नहीं पाए हो उसको, वहां पे रिकलेक्ट नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आर ओवरलोडिंग योरसेल्फ विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है. सो कंट्रोल योरसेल्फ, डू नॉट राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोट्स, ठीक है. और दूसरी बात, अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर बिगिनर, देन ऐसा हो सकता है कि आपके नोट्स थोड़े एग्जॉस्टिव है,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2-3 महीने के बाद देखो कि वही चीजें जो है रिपीट हो रही है, बार बार वही चीजें। अगर 1 साल आप पूरा न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो करोगे तो सेकेंड ईयर में वही चीजें कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगी। ये बिल है, ये एक्ट है, ये इशू है, बहुत सारे इश्यूज, वही चीज, वही चीज, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वही सारी चीज अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। ठीक है, सो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके नोट्स ट्रिम होने चाहिए। ठीक है, बट दिस इज द गोल्डन रूल, डोंट मेक notes on any particular topic or subtopic for more than 250 or 300 words, right? Fine. Coming back to magazine, कितने मैगजीन, कौन से मैगजीन? ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट वेरियस मैगजीन्स। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, योजना, कुरुक्षेत्र, सेमिनार, ठीक है, वर्ल्ड फोकस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, बहुत सारे विजर्ड, बहुत सारे करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। Now again, control yourself. It is sufficient to read one magazine. Okay, not more than that. Now, which magazine? Which magazine you should follow? Now, this is my personal opinion. Okay, I will suggest to read Yojana. Successful candidates have also advised to read Kurukshetra. But I will not advise because Kurukshetra is a magazine exclusively focuses on rural development, agriculture, so on and so forth. और अगर आप सिलेबस देखोगे तो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के ऊपर इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ना, आई डोंट थिंक दैट इफ यू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आई डोंट थिंक दैट इट विल हेल्प यू। ठीक है, सो आई बिलीव आउट ऑफ ऑल दी मैगजीन्स विच आर अवेलेबल, आई थिंक इट इज सफिशिएंट टू रीड योजना। वेरी वंडरफुल मैगजीन, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिशेस। ठीक है, और इसमें ये योजना पढ़ के ना आपको इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन जनरल स्टडीज मेंस में GS 1 2 3 4 ऐसे, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन इंटरव्यू। ठीक है, एंड ऐसे में स्पेशली आपको हेल्प करेगी किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह से मतलब एक ही इशू के ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हेल्थ है तो हेल्थ के ऊपर योजना अगर है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो है आपको समझ में आ जाएंगे। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई रीडिंग योजना इज इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, योजना खरीदते हैं, योजना इंपॉर्टेंट है, 2 दिन योजना ही पढ़ते बैठते हैं, 2 दिन से चल रहे हैं, अरे यहाँ योजना है, ये आर्टिकल है। नो, फिनिश योजना विद इन 2 और 3 मंथ, 2 और 3 आवर्स और लेस देन दैट इफ पॉसिबल। 2 या 3 घंटे में खत्म कर दो योजना। ठीक है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको पीएचडी नहीं करनी है। और इवन इन योजना ऐसा नहीं है कि सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल्स हो सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकेडमिक है, तो उसके ऊपर फोकस मत करो, उसको, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है वो एकेडमिशियंस के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए या हमारे जैसे प्रोफेसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इवन योजना आप पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगेन, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो सारे टीचर्स बोलते हैं, सारे प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, हाँ सॉरी एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे एडिटोरियल पेज में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एडिटोरियल पेज में जो भी प्रोफेसर्स या ऑथर्स आर्टिकल्स लिखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है। अब ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रीड करना है, नहीं रीड करना है। ठीक है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड इट रिक्वायर्स थॉरो नॉलेज ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है तो सारे एडिटोरियल 4 आर्टिकल आए, चारों के चारे पढ़ लिए, नहीं। यू शुड बी अवेयर एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, टू बी अवेयर अबाउट दिस सिलेबस। अगर सिलेबस से आप अवेयर हो, सिलेबस आपको पता है, यू कैन सेव योर टाइम। ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, सो फॉलो ओनली योजना। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू फॉलो कुरुक्षेत्र। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड है तो आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट कुरुक्षेत्र इज, मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, वंडरफुली रिटन, ये भी गवर्नमेंट मैगजीन है। लेकिन अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है। योजना यू कैन फॉलो एंड दैट टू ओनली 2-3 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। 3-4 दिन उसी को पढ़ रहे हो, नो, डोंट अवॉइड दैट मिस्टेक। अगेन, योजना के नोट्स जो बना रहे हो आप, ठीक है, योजना के नोट्स बना रहे हो वो भी शॉर्ट होने चाहिए, है ना। फोकस करो डेटा के ऊपर, फोकस करो केस स्टडीज के ऊपर कि कौन सी केस स्टडी है, कि ये केस स्टडी को मैं एग्जाम आंसर में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हो, हाँ, है ना, या कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन चीजों के ऊपर फोकस करो। ठीक है, बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दो, जरूरी नहीं कि सारे चीजों के आपके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फाइन।
So save your time. See, one mistake a civil servant aspirant they do is, they focus on quantity. So quantity is not much important. जरूर नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है. देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन. ठीक है, हाउ यू स्टडी process is very important. ठीक है, so don't focus on quantity. Truckload of information is not, it is necessary but it is not sufficient. ठीक है, what is important is quality. Focus on quality. आज मैंने 15 घंटे पढ़ाई की, बट व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ व्हाइल यू स्टडिंग. हाँ, आधे बैक ऑफ द माइंड में आपका कोई और चीज चल रही है और आप फिजिकली बैठे हो पढ़ाई करने के लिए. ठीक है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी. ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, चाहे करंट अफेयर्स हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ऑलवेज एम्फसाइज ऑन क्वालिटी. ठीक है, एंड नॉट ओनली ऑन क्वांटिटी. ठीक है, फाइन. नाउ नेक्स्ट issue is about internet. Next source. So far we have discussed about newspapers, monthly compilations, magazines. ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को फ्रंटलाइन बड़ा अच्छा लगता है. फ्रंटलाइन इज पब्लिश्ड बाय द हिंदू ग्रुप एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, पीएचडी नहीं करनी है, यू आर नॉट एकेडमिशियंस. ठीक है, हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इशू न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ है और उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कम है, you don't have much information about that, then you can read 1 or 2 articles from frontline. ठीक है, हाँ, सारा फ्रंटलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसमें कुछ बुक रिव्यूज आते हैं, वो कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं आपको. ठीक है, फाइन. सो नेक्स्ट सोर्स इज इंटरनेट. ठीक है, और आई विल फिनिश विद इन 5 minutes. हाँ, and then I'll take your questions. Please ask questions. ठीक है, you can ask any questions and I'll answer each and every question you will be asking. ठीक है, feel free to ask any question. ठीक है, इंटरनेट, तो इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको. I don't want to take names of those websites, लेकिन बहुत सारे डिजिटल इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनके वेबसाइट्स है. ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें भी गलतियां करते हैं. ठीक है, एक को कर लिया, उसमें सारा आपने पढ़ लिया करंट अफेयर से, एक पे क्लिक किया दूसरा लिंक ओपन हो रहा है, दूसरे लिंक पे क्लिक किया तीसरा लिंक ओपन हो रहा है. ऐसे करते दिन भर आप इंटरनेट पे ही घुसे रहते हो. डोंट डू दैट. ठीक है, इंटरनेट पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, लेकिन लिमिटेड टाइम स्पेंड करो, ज्यादा नहीं. सो आई सजेस्ट यू टू फॉलो पीआईबी वेबसाइट, बट दैट टू डोंट ओवरप्ले इट्स इंपॉर्टेंस. पीआईबी गवर्नमेंट का ये है, इंस्टीट्यूट है, तो इसमें से आप कुछ, ये हर दिन गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट का क्या व्यूज है, ये सारी चीज़ें बताते रहते हो. तो पीआईबी को फॉलो करो. ठीक है, बट इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू फॉलो ऑल द आर्टिकल्स ऑफ पीआईबी. ठीक है, अंडरस्टैंड द सिलेबस, नो द सिलेबस, उसके हिसाब से ही फॉलो करो. सारी चीज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं है. यू कैन फॉलो वेबसाइट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, देन यू कैन फॉलो ऑल इंडिया रेडियोज स्पॉटलाइट प्रोग्राम. फ्राइडे को या कभी तो डिबेट होती है आधे घंटे की. ठीक है, सो ऑल इंडिया रेडियो को भी आप फॉलो कर सकते हो. ये 9:15 को रात को आती है, 9:15 से लेके 9:30 एवरी डे ऑन एनी करंट इशू, करंट अफेयर्स. तो आप इसमें क्या है ना, आप डोंट वेस्ट योर टाइम. आप अपना खाने का टाइम इस तरह से करो कि आप जो है न्यूज़ भी 9 to 9:50 न्यूज़ होते हैं और 9 to 9:30 9:50 9:30 डिबेट होती है स्पॉटलाइट. ठीक है, तो आप अपना डिनर का टाइम जो है वो इस तरह से सेट करो कि उस टाइम पे व्हाइल हैविंग डिनर यू कैन लिसन टू द न्यूज़. So try to utilize your time in an effective manner. Time management is very important as far as civil service is concerned because syllabus is very vast. ठीक है, then you can also follow Rajya Sabha TV, Rajya Sabha and Lok Sabha TV. इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, वर्ल्ड फोकस्ड, विशेष, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जब भी आप फ्री हो, बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द डिजिटल सोर्सेज. Alright, so I think now most of your doubts you might have got little clarity over how to prepare for current affairs. I have discussed it comprehensively and now I will take the questions.